Hi friends, welcome to my channel. What I want to say is that when you take life easy breezy, मतलब थोड़ा सा you are taking things a bit lightly and not very seriously, so things become quite enjoyable and you enjoy doing your task. You will enjoy the company of people. Most of the times there will be people who will be creating obstacles in your work, but then you will not mind it. You will slide and navigate it because I have, since I used to be associated with couple of different kinds of association, cultural, social, charitable works. मैंने देखा है कि if you are a go getter, you will find more obstacles. People will literally get, as I said, even I've explained it earlier, that they will get work done out of you and you will not get the credit. ये आके last moment खड़े रह जाते हैं, photographs इनके खींच जाते हैं, credit इनको मिल जाती है. So what we should be doing is sliding and navigating very slowly. ऐसे पहले से ही हम अपना एनर्जी लेवल दिखाएंगे, हर चीज में एक ओपिनियन रखेंगे, तो आई हैव सीन दैट पर्सनली दैट दे विल लिटरली सीन टू दैट दे विल मेक योर लाइफ मिजरेबल. एंड एज आई सेड, ये जो नार्सिसिस्ट रहते हैं ना, दिस टॉक्सिक काइंड ऑफ पीपल, दे नेवर हैप्पी. दे आर नॉट हैप्पी. दे गेट वर्क डन बट दे आर नॉट हैप्पी. दे आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली वरिड about their image ki how much more they get from a simple task. Hard work will be done by somebody else, but they will take the credit out of it. So can you deal with such people? First and foremost, keep records of everything and start speaking about yourself. Self promotion, aajkal na you have to be pushy little bit. Yes, I was there, even I was doing it, excuse me, kind of thing. This works. Otherwise all kinds of vultures are there. Or be confident with things which you can do. Don't have to take too many things on the plate. Things which you can do, which you can manage, you should do it. Otherwise you should say thank you very much and just take a back seat. A lot of people want to do too many things at once. They want to do everything at once. It doesn't work out like this. Okay, I'll give you this incident now. जैसे एज अ कंटेंट क्रिएटर लोगों में वो घमंड आ जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज दे होल्ड अटेंशन ऑफ सो मेनी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स. तो ये सब्सक्राइबर्स, कुछ ऑफ देम बिकम दे आर लाइक चमचा काइंड ऑफ अ थिंग. तो ये बहुत अपने आप को लाइक दीज क्रिएटर्स थिंक दैट दे आर वेरी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल. एंड मैंने अपने को जो मेरे दूसरे क्रिएटर्स हैं जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करती हूँ, वो घमंड मैंने देखा है. कभी कभी इनका कंटेंट एकदम ही एवरेज रहता है, और लेकिन इनको इतनी ऐसे वाहियात सी तारीफ मिल जाती है ना इनके चमचों से, तो ये थोड़े से इनका दिमाग खराब हो जाता है. सो दे थिंक दे आर गॉड्स, दे आर गिविंग एजुकेशन टू पीपल. मैंने बोला ये कैसा किसका वाहियात एजुकेशन है? एजुकेशन इट सेल्फ इज स्टूपिड. फिर तुम आते हो अपने यूट्यूब पे और नो, आई एम एजुकेटिंग पीपल. एजुकेटिंग वॉट? Exactly what? Some sort of a mysterious kind of knowledge which only you have, which is not at all mysterious. If you go on internet, anything and everything can be have an access to it. तो मेहनत करना आना चाहिए, and you should know how to navigate the internet to get kind of a information. So लोगों को क्या लगता है कि अभी ये youngsters जो है, they get very carried away. अरे beer biceps, अरे ये वाला, अरे वो वाला. मैंने बोला वाहियात सी कुछ भी बकवास करता है वो. कुछ गेस्ट को बुलाता है, उनको पुश प्रमोट करता है, उसके व्यूज बढ़ते हैं, वो पैसे बनाता है. लगे हाथ तो सबका फायदा होता है. तो इट्स बिकॉज वी एज व्यूअर्स आर सो वेला दैट वी आर गिविंग अटेंशन टू ऑल दीज इडियोटिक पीपल. कभी कभी हम लोग को ऐसा लगता है एक मिस्टीरियस नॉलेज जैसा कुछ तो होता है. तो मिस्टीरियस कुछ भी नहीं होता है, इतना ज्यादा मिस्टीरियस. माइंडफुलनेस, मैनिफेस्टेशन कैसा करना है, एफर्मेशन. मैंने बोला ये चोचलेपने होते हैं. द मोर यू गेट इन टू ऑल दीज थिंग्स ना, तुम और आर्टिफिशियल बन जाते हो. when you start doing all this higher vibration and spirituality का ढोंगापना, doing yoga in the morning, मैंने बोला this is just an exercise to apply it and you become a ढोंगी. Oh, I'm just a vegetarian, I'm just a vegan. मैंने बोला for me it is depending upon my mood. Generally 95% of the time I'm vegetarian because I like vegetables. I'm not so fond of non-veg. That is my personal thing, not because I become very spiritual or nice person by eating vegetables. Okay, I can be as rotten as anybody else. कि so people want to be boastful. फिर वो एथनिक कपड़े पहन के अपना देसीपना का ढोंग, अपनी मातृभाषा, कल्चर के बारे में. मैं रिसेंटली एक रीजनल मूवी देख रही थी एंड दे वर टॉकिंग अबाउट दिस मातृभाषा कल्चरल थिंग. मैंने बोला या वी शुड अप्रिशिएट, बट वी शुड अप्रिशिएट डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल्सो.
अंग्रेजी को कोसना कोई अच्छी बात नहीं है। एट द सेम टाइम हम अपनी लैंग्वेज को भी डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए, बट अपने कल्चर का ढोल पीटना इज समथिंग वेरी आर्टिफिशियल एंड हिपोक्रिटल, मुझे ऐसा लगता है। लोगों को अगर किसी चीज को कंट्रोल करना है ना, ढोल पीटते संस्कृति, कल्चर, ये वो सभ्यता, ये पूरा नाटक ढोंगपना चलता रहता है। यू विल सी दिस, इनके ही बच्चे जो ऐसे ढोल पीटते ना, सबसे हरामी यही रहते हैं, सबसे ज्यादा कांड कर्म यही करते हैं। सो लाइफ में वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। की कॉशियस इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आजकल ना बहुत सारा कचरा है एवरीवेयर, मीडिया में भी और लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में भी एकदम ड्रेन्ड आउट फीलिंग होता है, चबड़ चबड़ करते रहते हैं। सी आई जस्ट केम आउट फ्रॉम, आई जस्ट अटेंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आई वाज थिंकिंग इन माई माइंड, अभी पिकनिक है, मुझे जाना नहीं है, मुझे इतना पसंद ही नहीं है। आई वाज टेलिंग दैट माय फ्रेंड कि मुझे नहीं पसंद है। शी लाइक कम ना, विल एंजॉय। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं पसंद है। अब वो कैसे मैं ना बोलूँ, क्योंकि ना बोलने से ऐसा लगता है यार पार्टी पुपर कि तुम्हें कुछ चीजें एंजॉय करनी ही नहीं है। नहीं, पैसे की, मैंने तो पैसे की बात ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं कैसे जबरदस्ती वो ऑफिस की पिकनिक इरिटेटिंगली जैसे कैसे कुछ भी होता था ना, मैं बहुत मन मार के जाती थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ऑफिशियली अगर मैं अकेले जाती हूँ और ग्रुप ऑफ 1 or 2 फ्रेंड्स जिससे कि मैं जानती हूँ, देन इट्स ओके, बट नॉट विद द क्राउड एंड ऑल, लाइक ईटिंग दैट वो सेम स्विमिंग पूल, वो सेम स्टूपिड रिसॉर्ट, दे जस्ट गो टू दैट गोराई प्लेस, यहाँ पे वहीं पे जाते हैं और मुझे बहुत बड़ा बोर होता है। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं कैसे ना बोलूँ, मैं ना ही बोल देती हूँ, मुझे आना ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का भी मैं हल्के हाथ से, हाँ, आउटसाइड वॉलेंटियर बन के चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन था। आई सेड आई डोंट माइंड वंस इन अ वाइल। आई वांटेड टू गिव अ लॉट ऑफ आइडियाज, लेकिन ये पूरे बूढ़े लोगों का था। लाइक यहाँ पे मुंह खोलना एकदम पाप ही होगा। सो आई जस्ट शट माई माउथ। मैंने बोला ये इतने थकावट से काम करते हैं ना, जैसे से बोझ लगता है, गवर्नमेंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन लगा मुझे। जबकि इट शुड बी वेरी, व्हेन वी आर डूइंग चैरिटी, हंसी खुशी में करना चाहिए और नए फ्रेश आइडियाज आने चाहिए। लेकिन मैंने बोला यहाँ पे नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे, मैं तो ऐसे ऐसे एज ए सेड, मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग, आई गेट इन्विटेशंस एंड आई सी दैट। मैंने बोला मैं अपना मुंह बंद ही रखती हूँ, मुझे खास पसंद नहीं आया। मैंने ना भी नहीं बोला, हाँ भी नहीं बोला, बट एज ए सेड, एज एन वॉलंटियर आई विल ऑलवेज बी देयर गिविंग माई कॉन्ट्रीब्यूशन। और मुझे अच्छा लगता है चैरिटेबल वर्क्स, व्हाई नॉट। तो इसका मतलब नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ही घुस के गवर्नमेंट जॉब, इनकी शक्लें देख के मैंने बोला चैरिटी तो दूर, पता नहीं कैसे। जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन है ये, और कुछ नहीं। So as I said, I'm just taking up random topics and clubbing them up and talking. तो I don't know what thumbnail to put, और मुझे ये भी पता नहीं कि कौन सा टाइटल दे दूँ। आजकल तो मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई हूँ। सो आई जस्ट लीव इट एज इट इज़। मैंने उनको प्लेलिस्ट में भी ऐड नहीं किया, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर फीडबैक। प्लीज़ कीप गिविंग मी फीडबैक, प्लीज़ गिविंग मी सजेशंस। ये जो होता है बहुत ही स्पॉन्टेनियस काइंड ऑफ अपलोड्स रहते हैं, जैसे मेरे दिमाग में आइडियाज आते हैं ना, आई upload them, okay, and share it with you people. Thank you, have a nice day, bye.